ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಚೆಂಬು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ನೈತಿಕತೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ತಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರೋಧಿ ಎನ್ಡಿಎ ಪಕ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮೋದಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಮೇತವಾದ 1,81,072 ಕೋಟಿ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿತ್ತು. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಕೆದಾಟು ಹಾಗೂ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಆಯೋಗ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇಹಾ ಕೊಲಿಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಾವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರ ಟ್ರೈಲರ್, ಮುಂದೆ 5 ವರ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೀರೋ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ಲನ್ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಿಯನ್ನ ವಿಲ್ಲನ್ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಒಬಿಸಿ ಎಸ್ಸಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಮುಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂದರು. ನೇಹಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಆರೋಪಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಐಡಿಗೆ ವಹಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಎಂದರು. ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 400 ಅಲ್ಲ 150 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 150 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾದು ನೋಡಿ ಎಂದರು. ಐಎನ್ಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಹೋರಾಟ ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಜೀವನದಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಎಂದರು. बहुत थोड़े शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब नई ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए और हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत पर बांट दिया. सारे हिंदुस्तान को एक दूसरे से लड़वाया, हिंदुस्तान के टुकड़े किए, हिंदुस्तान में भाई भाई को लड़वाया. वो ईस्ट इंडिया कंपनी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी. मोदी जी भी उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे हैं और वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएं. खास तौर से जाति और धर्म का विभाजन तो वो करते ही हैं. अब एक नए किस्म का डिवीजन विभाजन भी शुरू कर दिया है. वो है कर्नाटक जैसे प्रांतों से नफरत का माहौल पैदा करना. श्रीमान नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह 6.5 करोड़ से अधिक कन्नड़ी गांव से नफरत करते हैं. श्रीमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह और मोदी सरकार बीजेपी को हराने का अब कर्नाटक के लोगों से बदला ले रही है. श्रीमान अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कर्नाटक के साथ घोर अन्याय, भेदभाव का व्यवहार कर रही है. भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार कर्नाटक के लोगों को उनका हक उनसे छीनकर कर्नाटक के लोगों से प्रतिशोध की आग में धधक रही है.
क्योंकि उनका डीएनए ही बीजेपी और जनता दल का डीएनए अब एंटी कर्नाटका, एंटी कन्नडिगा हो गया है। और इसके कई जीते जागते उदाहरण हैं। पूरे देश में तो मोदी जी केवल हिंदू मुसलमान का राग अलापेंगे। 10 साल जो व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा हो उसके पास कुछ कहने के लिए ही नहीं तरक्की के मामले में। ये दर्शाता है कि वैचारिक दिवालियेपन की शिकार और राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार, पॉलिटिकल bankruptcy and the bankruptcy of thought is now plaguing the BJP and Modi government. कर्नाटक के संदर्भ में जो दुश्मनी, जो प्रतिशोध, जो बदले की आग मोदी सरकार के दिल में धधक रही है, उसके कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है सितंबर 2023 में कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, उसमें जो पैसा जमा है वो कर्नाटक के लोगों का है, जो हम अपने टैक्स से जमा कराते हैं। हर प्रांत देता है उसमें पैसा, ताकि जहां प्राकृतिक आपदा है, सूखा, बाढ़, भूकंप या कोई और ऐसी चीज या बीमारी, तो वो पैसा फिर उस प्रांत को मिल जाता है। अमित शाह जी और मोदी जी हमारे मंत्रिमंडल से मिलने से इनकार कर गए। आखिर में हमारे 3 मंत्री, आरडीपीआर मिनिस्टर प्रियांक खड़गे, रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बायरेगौड़ा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर वेंकटेश, सितंबर 2023 में ही एग्रीकल्चर सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी से मिले और हमने अपना 18,172 करोड़ कर्नाटक के रायता बंधुओं को देने का मेमोरेंडम पेश किया। हाई पावर्ड कमेटी आई, सबने देखा, सबने कहा सही है। 30 दिन के अंदर कानून है, जब कोई प्रांत एनडीआरएफ का पैसा मांगे तो ये उन प्रांतों का पैसा है, भारत सरकार का नहीं है, ये उन्हें देना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान में कानून है। एनडीआरएफ का पैसा मांग के 30 दिन में देना पड़ता है, यानी अक्टूबर 2023 तक वो पैसा कर्नाटक के किसानों को, रायता बंधुओं को देना चाहिए था। अमित शाह जी उस कमेटी के प्रमुख हैं। अमित शाह ने अक्टूबर 2023 से 25 अप्रैल 2024 तक वो मीटिंग ही नहीं की। तो देख लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6.5 महीने से ज्यादा से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक से भेदभाव कर रहे हैं और दुश्मनी कर रहे हैं। आखिर में हमें कर्नाटक की सरकार को, कर्नाटक के लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, मोदी सरकार को फेडरलिज्म की याद दिलाई। तो पिछले हफ्ते अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हां, हम अब निर्णय करेंगे, अभी तक किया नहीं। हम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से और बीजेपी के प्रांतीय नेताओं से पूछना चाहेंगे, कर्नाटक के किसानों का 18,172 करोड़ आप क्यों नहीं दे रहे? कर्नाटक भीख नहीं मांग रहा मोदी जी, कर्नाटक अधिकार मांग रहा है, और ये हमारा पैसा है जो एनडीआरएफ में जमा है। ये भेदभाव और बदले की भावना क्यों? दूसरा उदाहरण, वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे। सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को गिरा दिया। सच्चाई ये है कि 10 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री को मुसलमान, ईसाई, सिख और बुद्ध को गाली देने के सिवाय कुछ नहीं बचा। पंजाब में जाएंगे तो सिख को खालिस्तानी बोलेंगे, यूपी में चर्चिस को जलाया जाएगा,
यहां आएंगे तो मुसलमान को। बीजेपी का डीएनए ही एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी है। आप मुझे बताइए, क्या ये सही नहीं कि हेगड़े जी जो बीजेपी के लीडर हैं कर्नाटक में, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? क्या ये सही नहीं कि अरुण गोविल जो बीजेपी के नेता हैं, यूपी में मोदी जी के चहेते हैं, जिन्हें उन्होंने खास तौर से अपनी जेब से निकालकर बीजेपी की टिकट दी है, उन्होंने कहा मोदी जी ने मुझे कहा है हम संविधान बदल देंगे। लल्लू सिंह जो योगी आदित्यनाथ के चहेते हैं और बीजेपी के एमपी कैंडिडेट हैं यूपी में, उन्होंने खुलेआम कहा, मैं वो वीडियोस भेज दूंगा, मेरे ट्विटर पे भी लगे, कि हम संविधान को बदल देंगे। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की एक और नेता है ज्योति मिर्धा जी राजस्थान में, क्या ये सही नहीं कि उन्होंने अभी कहा कि हम संविधान बदल देंगे? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी तो पहले ही आरक्षण के बारे में कह चुके हैं कि ये आरक्षण जो है इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। देखिए, इस देश में गरीब को, एससी, एसटी, ओबीसी को सबसे बड़ा अधिकार संविधान है, और मोदी सरकार इस संसदीय चुनाव के बाद अभी भी संविधान पर हमला बोल रखा है और वो अब संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और जो हमारे ओबीसी साथी हैं या एससी, एसटी साथी हैं, उन पर तो एक डिजाइन्ड अटैक हो रहा है। आप मुझे बताइए, 73 पीएसयूज मोदी जी ने बेच दिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उनमें 15 लाख नौकरियां थी। उन 15 लाख नौकरियों में 27% ओबीसी की थी, आधी एससी, एसटी की थी, तो 50% नौकरियां चली गई। 7.5 लाख नौकरी तो चली गई। 30 लाख सरकारी नौकरियां मोदी जी ने 10 साल से भरी नहीं। 15 लाख तो एससी, एसटी, ओबीसी की हैं, उनको भी निकाल दिया। भारत सरकार का बजट देते हैं भारत सरकार के सेक्रेटरीज। पहले प्रमोशन से लोग बनते थे, एससी, एसटी, ओबीसी को भी मौका मिलता था। अब उन्होंने लेटरल एंट्री कर दी है, यानी प्राइवेट सेक्टर से डायरेक्ट भर्ती करते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर। तो अब तो कोई सेक्रेटरी एससी, एसटी, ओबीसी का है नहीं, क्योंकि उनका आरक्षण ही खत्म कर दिया आपने। हमने एससी, एसटी सब प्लान बनाई थी, वो भी खत्म कर दी। हमने ओबीसी जनगणना की थी, मोदी जी उस रिपोर्ट को जेब में डालकर बैठ गए। ये ओबीसी के हक की बात है या ओबीसी विरोधी मानसिकता है? दूसरा, आपने कहा एक बिटिया के बारे में। मैंने कल विस्तृत तौर से निरंजन हिरेमठ जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे, उनके पूरे परिवार से, श्री एच.के. पाटिल, श्री संतोष लाड, प्रसाद अभया, हिंडस गिरी जी, सलीम अहमद जी, हम सब मिलकर आए थे। काफी समय उनके साथ बिताने का, उनका दुख साझा करने का मौका मिला। और हमने ये उन्हें कहा कि न केवल निरंजन हिरेमठ हमारे परिवार का हिस्सा है, परंतु नेहा वो कर्नाटक की बेटी हैं, हम सब की बेटी। वो शरीर से जरूर चली गई, एक जघन्य अपराधी ने उनकी हत्या की, पर उनकी जो मेमोरी है उस बिटिया की, वो हमेशा हमारी आत्मा पर अंकित रहेगी और उसकी मेमोरी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। इसलिए सिद्धारमैया जी ने और कांग्रेस सरकार ने 3 बड़े फैसले किए हैं परिवार से चर्चा करके। पहला, हम एक स्पेशल कोर्ट का इमीडिएटली गठन करेंगे। दूसरा, केस को हैंडओवर कर दिया गया है सीआईडी को और उन्हें कहा गया कि फौरन चार्जशीट दायर करें। तीसरा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति होगी और हम कोर्ट को कहेंगे कि डे टू डे ट्रायल चलाकर 90 से 120 दिन में इस ट्रायल को समापन कर दें। चौथा, सरकार ने फैसला किया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से सरकार उस अपराधी के खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा मांगेगी और सुनिश्चित करेगी कि ऐसा अपराध करने वाले को फांसी की सजा मिले। अपराधी की ना कोई जात है ना धर्म हो सकता, इतनी कड़ी सजा उसे देंगे कि सब अपराधियों की रूह कांप जाए और कोई दोबारा हमारी किसी बेटी की तरफ आंख उठा के ना देख सके। बीजेपी क्या कर रही है? वो लाशों पर, हत्या पर राजनीति कर रही है। ये घिनौनी बात है, शर्मनाक है। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आप किसी बिटिया की हत्या पर राजनीति कर सकते हैं?
वो रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है वोट की, हम न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आप सबसे भी आग्रह है, आप जागरूक हैं। अभी कभी हम रास्ता भटकते हैं तो आप हमें रास्ते पर दोबारा लाते हैं, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं आपके। हम मोदी जी की तरह आपको जेल में नहीं डालेंगे, ना आपकी नौकरी बर्खास्त करवाएंगे मालिक को कह के, हम हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करेंगे। तो हम केवल आपको ये कहना चाहते हैं कि देखिए, एक बिटिया की हत्या हुई है, उस पर कार्रवाई पूरी हो रही है, परिवार की तसल्ली है। हम सबको, विपक्ष के मेरे साथियों को भी, मेरे पत्रकार साथियों को भी और हमको खुद को भी अब और ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा और उस बिटिया की स्मृति में परिवार को कोई आहत ना पहुंचे, ये करना पड़ेगा। आपको कहा था मैंने लास्ट सवाल। नहीं सर, ये दोनों मुझसे नाराज हो जाएंगे, फिर अगली बार आने नहीं देंगे मुझे। देखिए, जिनको 150 पार नहीं मिल रहा वो 400 पार का जुमला दे रहे हैं, पर इस बार लोग जो है वो उनके बहकावे में आने वाले नहीं। कर्नाटक में वही होगा जो हमारे साथ पिछली बार हुआ था। आप देखिए कि कर्नाटक में 20+ हमारे चीफ मिनिस्टर और पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा, मेरा ये मानना है कि उससे भी ज्यादा सीट आएंगी। याद करिए, इसी मेज पर जब मैंने कहा था हमारी 150 आएंगी तो आप बड़े शक में थे कि यार ऐसे ही बोल रहा है, पर 140 तक तो हम पहुंच ही गए और 5-7 की हमसे गलती हो गई होगी, नहीं तो 150 पहुंच जाते। तो इसलिए हम इस बार उतना ही अच्छा करने वाले। ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ನಾವಲಗಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕರು ಆದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ 24/7ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.